Welcome students. This is the second part of the video mathematical reasoning of class 11. In this part we will discuss implications, contrapositive and converse of if P then Q statement, exercise 14.4, then validating statements by direct method, contrapositive method and the method of contradiction. Then we will discuss exercise 14.5 and miscellaneous part. Here we will discuss the implications of if then, only if and if and only if. Among these three, if then statements are very common in mathematics. Here is an example. If you were born in some country, then you are a citizen of that country. Here two components are you were born in some country and you are a citizen of that country. Here P is you were born in some country and Q is what? You are a citizen of that country. Okay. Now if P then Q can be written as P implies Q, P is sufficient condition for Q, P only if Q, Q is a necessary condition for P, not Q implies not P. You can remember this sign denotes negation of Q and it is read as not Q. These five are same in meaning and their equivalent meaning of if P then Q. Now we will discuss contrapositive and converse of if P then Q. Contrapositive of if P then Q is if not Q then not P. This is formula how to write contrapositive of a sentence. ये जो सेंटेंस या स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे लिखना है, उसका रूल ये है. इफ पी नॉट क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा इफ नॉट क्यू देन नॉट पी. ओके, नोट दैट ये जो ओरिजिनल सेंटेंस स्टेटमेंट है, ओरिजिनल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू है और ये जो कॉन्ट्रापॉजिटिव है इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, इन दोनों का मीनिंग सेम है. कन्वर्स क्या होगा इफ पी देन क्यू का? इफ पी देन क्यू में पी और क्यू को आप स्विच कर दीजिए इफ क्यू देन पी. दैट विल बी द रूल फॉर कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट. ठीक है, इधर जो मीनिंग है ओरिजिनल स्टेटमेंट और कन्वर्स का, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, सेम मीनिंग नहीं होगा. एग्जाम्पल ले लीजिए. दिस इज एन एग्जाम्पल. इफ the physical environment changes, then biological environment changes. At first you have to understand what is P and what is Q. P here is the physical environment changes. What is Q then? The biological environment changes. The biological environment changes is Q. तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा? If the biological environment does not change, then the physical environment does not change. Simply I used this rule. Converse क्या होगा? If the biological environment changes, then physical environment changes. देखिए इधर पहला वाला जो पार्ट है उसको सेकेंड में हमने लिखा है और जो सेकेंड वाला पार्ट है वो पहला वाला हो गया है ना, just like this rule. Now, if and only if implication can be represented by this symbol implies and implied by. Equivalent form of P if and only if Q is what? There are three equivalent forms. The first form is
Q if and only if P. The second form is P is necessary and sufficient condition for Q, and vice versa. The third form is P implies and implied by Q. Okay, now we will discuss exercise 14.4. The first question is rewrite the following statement with if then in 5 different ways conveying the same meaning. If a natural number is odd, then its square is also odd. You can remember there are 5 equivalent forms of if then. I just wrote that 5 forms. If P then Q का 5 फॉर्म्स है, इक्विवेलेंट फॉर्म. पहले तो आपको देखना पड़ेगा P क्या है और Q क्या है. इन दिस स्टेटमेंट P इज अ नेचुरल नंबर इज ऑड, Q इज इट्स स्क्वायर इज ऑड. ठीक है, फिर आप फॉर्म्स इक्विवेलेंट फॉर्म्स एक एक करके इंसर्ट कर दीजिए. यू विल गेट योर आंसर्स. द फर्स्ट फॉर्म इज P ओनली इफ Q. देख लीजिए, अ नेचुरल नंबर इज ऑड ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज ऑड. The next is P implies Q. मतलब a natural number is odd implies that its square is odd. Third form is if the square of a natural number is not odd, then the natural number is not odd. Means if not Q, then not P. The fourth is P is sufficient for Q. For a natural number to be odd, it is sufficient that its square is odd. Fifth is Q is necessary for P. For the square of a natural number to be odd, it is necessary that the number is odd. You can remember these are the 5 forms of if P then Q. Next question is write the contrapositive and converse of the following statements. Okay. The first one is if x is prime number, then x is odd. Here P is x is prime number, Q is x is odd. कैसे लिखेंगे? कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा? इफ नॉट Q then not P. तो हम लिखेंगे if x is not odd then x is not a prime number. कन्वर्स क्या है if P then Q का? if Q then P. मतलब ये वाला आपका पहले आ जाएगा. if x is odd then x is prime number. वही हमने लिखा है. ठीक है. Similarly, you can solve question number Roman 2, Roman 3 and Roman 4 and 5 of 2, question number 2 by yourself, just like question number 1. So we are moving to question number 3. Here you have to write some statements in the form if then. Okay, the first statement is this: you get a job implies that your credentials are good. Here you have to understand what is P and what is Q and in which form it is written. Look at the form. Something implies something means it is written in the form P implies Q. Then P is what? This you get a job, and Q implies your credentials are good. You just put if P then Q. This is your answer. If you get a job, then your credentials are good. Roman 2. The banana tree will bloom if it stays warm for a month. Here if के बाद जो पोर्शन है वो क्या है? आपका P है. ठीक है. एंड जो पहला वाला पोर्शन है वो क्या है? Q है. तो आप इसको कैसे सजा के लिखेंगे? इफ बनाना ट्री स्टेज वार्म फॉर अ मंथ देन इट विल ब्लूम. दिस इज योर आंसर. इफ बनाना ट्री स्टेज वार्म फॉर अ मंथ देन इट विल ब्लूम. क्वेश्चन नंबर Roman 3. A quadrilateral is a parallelogram if its diagonals bisect each other. Okay. Similarly, ये आपका Roman 2 की तरह ही है. आप इसको कैसे लिखेंगे? इफ के बाद जो पोर्शन है उसको आप पहले लिखेंगे. मतलब इट का नाउन क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल. तो आपका आंसर होगा इफ diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram. Roman 4. To get an A plus in the class, it is necessary that you do all the exercise of the book.
तो हमको पता है Q इज नेसेसरी फॉर P, ऐसे ये सजा के लिखा है। तो हम कैसे लिखेंगे, इफ यू गेट A+ in class then you do all the exercise in the book। ठीक है, what is necessary, it is necessary that you do all the exercise of the book, मतलब ये आपका Q है। आप लोग गलती करते हैं, इसको Q मान लेते हैं, पहले जो लिखा है वो Q मान लेते हैं। क्यों, आपका फॉर्म था Q is necessary for P, लेकिन इधर लिखा है it is necessary that something is your Q। okay, now we will move to question number 4। Given statements A and B, identify the statements given below as contrapositive or converse of each other। okay, आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और उनके लिए क्या रोमन 1 और रोमन 2 गिवन है। आपको बोलना है रोमन 1 कॉन्ट्रापॉजिटिव है या कन्वर्स है, सिमिलरली रोमन 2 कॉन्ट्रापॉजिटिव है या कन्वर्स है। देखते हैं, इफ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लोथ्स। तो इफ के बाद आपका जो पोर्शन है ये P है, देन के बाद जो पोर्शन है वो Q है। हमको पता है रूल क्या है, इफ P देन Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव, इफ नॉट Q देन नॉट P। तो इफ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ्स कॉमा देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली, तो दिस इज योर कॉन्ट्रापॉजिटिव। सिमिलरली कन्वर्स में रूल क्या था, इफ P देन Q का कन्वर्स था इफ Q देन P। तो इधर क्या होगा, इफ यू हैव विंटर क्लोथ्स देन यू लिव इन दिल्ली। नाउ B is what, if a quadrilateral is a parallelogram then its diagonal bisect each other। if P क्या है, A quadrilateral is the parallelogram, Q क्या है, its diagonal bisect each other। ओके, देखते हैं कौन सा कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा, कौन सा कन्वर्स होगा। हियर if the diagonals of a quadrilateral do not bisect each other then the quadrilateral is not parallelogram। तो आप देखिए इधर जो डायगोनल वाला पोर्शन है वो Q था, वो पहले उसका नेगेशन करके लिखा हुआ है, फिर P का नेगेशन लिखा हुआ है, तो दिस इज योर कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट। एंड ये वाला रोमन 2 में देखिए जो आपका Q था वो डायरेक्ट लिखा हुआ है पहले और देन आपका P लिखा है, मतलब ये फ्लिप हो गया P और Q, therefore this is your converse। okay, now we will discuss validating a statement। rule 1, if P and Q are mathematical statements then in order to show that the statement P and Q is true the following steps you have to follow। Step number 1, show that the statement P is true। Step number 2, show that the statement Q is true, मतलब आपको P को भी ट्रू प्रूफ करना है एंड Q को भी ट्रू प्रूफ करना है, दोनों को आप ट्रू प्रूफ कीजिए, देन यू विल डिक्लेयर P एंड Q इज ट्रू। रूल नंबर 2 क्या है, if P then Q are mathematical statements then in order to show that the statement P or Q is true one must consider the following cases। Case number 1, by assuming that Q is false we will show P is true। Case number 2, by assuming that P is false we will show Q must be true। Now rule 3, in order to prove statement if P then Q we need to show that any of the following case is true। Case 1 क्या है, by assuming that P is true we have to show Q is true। ये जो मेथड है केस 1 में, ये जो मेथड बोला गया है ये है डायरेक्ट मेथड। एग्जाम्पल देखते हैं, if x is a real number such that x cube plus 4x is equal to 0 then x is equal to
0। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले p क्या है और q क्या है हम लिखेंगे। p इज x इज रियल नंबर सच दैट x क्यू प्लस 4x इज 0। q क्या है, x इज 0। अच्छा, अभी हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, p ट्रू। देखिए बाय एज्यूमिंग p इज ट्रू वी विल प्रूव q इज ट्रू। तो p हमने ट्रू मान लिया है। p ट्रू है मतलब x क्यूब प्लस 4x इज 0। एक्स क्यूब प्लस 4x इज 0। तो इधर से हम x कॉमन लेते हैं, वी विल गेट x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ लुक एट दिस पार्ट, x एक रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये वाला फैक्टर x ये ही 0 होगा। तो हमको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 0। वही हमारा q पार्ट था, ये देखिए q इज x इज इक्वल टू 0 मतलब q इज ट्रू। देयरफॉर आपका स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नाउ वी विल डिस्कस केस 2 बाय एज्यूमिंग q इज फॉल्स वी विल प्रूव p इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, ये मेथड का नाम है कंट्रापोजिटिव मेथड। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, इफ x इज द रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस 4x इज 0 देन x इज 0। सेम यही एग्जाम्पल है, पहले हमने इसको डायरेक्ट मेथड से प्रूव किया, अभी हम कंट्रापोजिटिव वे से प्रूव करेंगे। तो p लिख लीजिए, q लिख लीजिए। अभी एज्यूम कीजिए q फॉल्स है, मतलब x ऐसा रियल नंबर है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये भी कभी 0 नहीं होता है। तो अभी ये भी नॉट 0 है, ये भी नॉट 0 है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी नॉट 0 होगा। मतलब आपका p क्या था, दिस इज 0। अभी ये नॉट 0 है मतलब p क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो q फॉल्स एज्यूम किया है, p फॉल्स प्रूफ किया है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू बाय कंट्रापोजिटिव मेथड। Now, rule 4. In order to prove the statement P if and only if Q, we need to show if P is true then Q is true and if Q is true then P is true। एक साथ दोनों को ही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, रोमन 1 and रोमन 2। Another method is method of contradiction. Here to check whether a condition P is true, we assume that P is not true. Then we arrive at some result which contradicts our assumption. Therefore, we conclude that P is true. You already know this method. In class 10, you proved root 2 is irrational by this method. Okay? आपने क्या assume किया था? Let us assume that root 2 is rational number. देन आपने लास्ट में लिखा था कि रूट 2 आपका रैशनल नंबर एक कंट्राडिक्शन है, देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। अच्छा, इधर हम एक एग्जांपल लेते हैं, इफ x इज अ रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस 4x इज 0 देन x इज 0। ये कंट्राडिक्शन मेथड से हम कैसे करेंगे। पहले p क्या है लिख लीजिए, x इज अ रियल नंबर सच दैट एक्स क्यूब प्लस 4x इज 0 देन x इज 0, ये आपका p है। अच्छा, p फॉल्स है मतलब x एक रियल नंबर है सच दैट एक्स क्यूब प्लस 4x इज 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हम लास्ट में देखेंगे कि ये जो हमने एज्यूम किया है ये क्या है, गलत है। मतलब ये जो x नॉट इक्वल टू 0 है, इधर हम कंट्राडिक्शन लाएंगे।
कैसे देख लीजिए, ये आपका 0 है, मतलब इधर से आप x कॉमन लीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 कभी 0 नहीं हो सकता, तो इधर से कौन सा 0 होगा, ये वाला x फैक्टर 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, एक कंट्राडिक्शन हो गया, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, सो आवर स्टेटमेंट p इज ट्रू। You have to note that in mathematics काउंटर एग्जाम्पल कहाँ यूज होता है, एक स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए हम काउंटर एग्जाम्पल यूज करते हैं। जब स्टेटमेंट ट्रू है तब काउंटर एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो वो वैलिडेट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस सेंटेंस, दिस स्टेटमेंट ओनली, इधर आपका ये जो स्टेटमेंट है इसको आप प्रूफ करेंगे x का वैल्यू 2 लेके। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि x इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो क्या हो रहा है, तो ये वैलिडेट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कब एग्जाम्पल देंगे, जब आपको डिस्प्रूव करना है कोई स्टेटमेंट। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 14.5. The first question is, show that the statement if if x is the real number such that x cube plus 4x is 0, then x is 0 by the is true by direct method of contradiction, method of contrapositive. We already proved that in previous slides. You can check them and you can understand the importance of this method. Okay, now moving to question number 2. Show that the statement this for any real number a and b, a square is equal to b square implies a is equal to b is not true by giving a counter example. ठीक है, तो हमने ये एग्जाम्पल चूज किया, दिस इज जस्ट अ हिंट, ये आपका आंसर नहीं है। आप कैसे लिखेंगे इसको, अगर ये एग्जाम्पल आप लेते हैं तो आप लिखेंगे take a is equal to 2, b is equal to minus 2, then 2 square is equal to minus 2 square is equal to 4, but 2 is not equal to minus 2. This is your complete answer. Okay, now question number 3 says, show that the following statement is true by the method of contrapositive. Okay, the what is the statement, if x is an integer and x square is even, then x is also even. Okay, x इज एन इंटीजर इज मतलब कॉमन है, ये पार्ट है ना, एक्स स्क्वायर इज इवन, एक्स इज इवन, इसके लिए एक्स इज एन इंटीजर कॉमन है। तो आप अगर कंपोनेंट देखेंगे तो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, एक्स स्क्वायर इज इवन, ये आपका क्यू कंपोनेंट है, आर कंपोनेंट कौन सा, एक्स इज इवन, वेयर एक्स इज एन इंटीजर, मतलब आपका पी क्या बन गया, इफ क्यू देन आर। तो हमको कॉन्ट्रा पॉजिटिव वे से प्रूफ कैसे करना है, जो बाद में है, देन के बाद जो है उसको आप फॉल्स एज्यूम कीजिए, इफ के बाद वाला पार्ट को आप फॉल्स प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो इस आर को हमने फॉल्स एज्यूम किया है, क्यू को हम फॉल्स प्रूफ करेंगे। लेट आर इज फॉल्स, मतलब एक्स इज नॉट इवन, है ना, एक्स इज नॉट इवन, एक्स इवन है नहीं है मतलब एक्स ऑड है, तो ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड ही होता है, therefore x square is odd, मतलब x square is not even, तो आपका q क्या हो गया, false हो गया। तो आपने q false प्रूव किया है, कहाँ से किया है, r false assume करके, therefore by the method of contrapositive p is true. Now moving to question number 4. By giving a counter example, show that the following statements are not true. P says that if all the angles of a triangle are equal, then the triangle is an obtuse angle triangle. आपको एक एग्जाम्पल देना है जो इसको फॉल्स, AP को फॉल्स प्रूव करेगा। काउंटर एग्जाम्पल मैंने लिया है इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना, बट दिस इज अगेन जस्ट अ हिंट। आप कैसे लिखेंगे, लेट द ट्राइंगल इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, is an equilateral triangle ले लिया एक ट्राइंगल को, therefore all the angles are equal to 60 degree, but the angle is not a obtuse angled triangle. Next, Q says that the equation x square equal minus 1 is 0 does not have a root lying between 0 and 2. तो एक एग्जाम्पल लीजिए जो इसको वैलिडेट नहीं करता है, इनवैलिड प्रूव कर देता है स्टेटमेंट को। कैसे,
हमको पता है x इक्वल टू 1 क्या है, एक रूट है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 का दो रूट है, प्लस माइनस 1, उनमें से एक रूट है 1 जो कि 0 और 2 के बीच में लाई करता है। तो आप ये वाला एग्जाम्पल तो नहीं है, मतलब ये सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल ही जाएगा एक रूट। तो एग्जाम्पल की तरीके से इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टेक x इक्वल टू 1 which is the root of x square minus 1 equal to 0 and it lies between 0 and 2. Next, question number 5. Which of the following statements are true and which are false? In each case, give a valid reason for saying so. तो पहला वाला आपका क्वेश्चन है, each radius of a circle is chord of the circle. क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि आप कॉर्ड का जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे, ठीक है। तो कॉर्ड क्या होता है, आपका दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है एक सर्कल को, लेकिन रेडियस तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, तो रेडियस कॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्यू क्या है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फॉल्स होगा, क्यों, एक ऐसा कॉर्ड आप ड्रॉ कीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसमें एक ऐसा कॉर्ड ड्रॉ कीजिए, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कीजिए, फिर एक कॉर्ड ड्रॉ कीजिए जो कि सेंटर से पास नहीं करता है, वही आपका एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट, सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ इलिप्स, ऑब्वियसली ये ट्रू है। इलिप्स का जनरल आप इक्वेशन डालिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए इक्वल टू बी, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सेम हो गया तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। उसके बाद आप कौन सी इक्वेशन पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी ए स्क्वायर, ठीक है, ये आप खुद लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, इफ x and y are integers such that x is greater y, then minus x is less than minus y, ठीक है। ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, अगर आप एक इनइक्वलिटी में माइनस साइन इंट्रोड्यूस करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। तो ये वाला इनइक्वलिटी में दोनों तरफ माइनस साइन इंट्रोड्यूस कीजिए, ये ग्रेटर देन साइन क्या हो जाएगा, लेस देन साइन हो जाएगा, जो कि ये है। तो डायरेक्ट मेथड से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रूट 11 इज अ रैशनल नंबर, ये क्या है, फॉल्स है ऑब्वियसली, क्योंकि हमको क्या पता है 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो उसका रूट क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। Now we will discuss the miscellaneous exercise of this chapter. The first question is, write the negation of the following statement. The statement is, for every positive real number x, the number x minus 1 is also positive. इसका negation क्या होगा, इसका negation होगा, it is not the case that every positive real number x, the number x minus 1 is also positive. Just prefix the phrase it is not the case, और एक phrase है it is false that, ठीक है। अगर किसी को ये पसंद ना आए तो वो कैसे लिखेंगे, वो ऐसे भी लिख सकते हैं, there exists a positive real number x such that x minus 1 is also positive, but I will suggest just prefix this phrase it is not the case that और it is false that बोल के जो आपका स्टेटमेंट गिवन है वो, ठीक है। ऐसे ही आप रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। We are moving to question number 2. You have to state the converse and contrapositive of the following statement. Statement क्या है, a positive integer is prime only if it has no divisor other than 1 and itself. हिंट गिवन है, पहले आप देखिए ये कौन सा फॉर्मेट में है, आर ओनली इफ एस में है, तो इसको हम इफ देन में कन्वर्ट करके लिखेंगे, इफ आर देन एस। कन्वर्स का कौन सा रूल था, इफ एस देन आर, मतलब आप कैसे लिखेंगे, इधर आर कौन सा है, ए पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम, एस कौन सा है, इट हैज नो डिविजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, तो आप कैसे लिखेंगे, ए पॉजिटिव नंबर हैज नो डिविजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, देन इट इज प्राइम, ठीक है, ये आपका कन्वर्स है।
कंट्रापोजिटिव क्या है, इफ नॉट एस देन नॉट आर, मतलब इफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज नो डिविजर्स, नो डिविजर्स तो हो जाएगा हैज डिविजर्स। फिर से रिफ्रेश करते हैं, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज डिविजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ देन इट इज नॉट प्राइम। इधर आर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर प्राइम, तो नॉट आर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर नॉट प्राइम। ठीक है, तो आप ऐसे पहले आर और एस क्या है पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप फॉर्मेट में डालिए। ये जो है ये आप रफ में कर सकते हैं, फिर आप अपने मेन जो पोर्शन है कॉपी में उधर आर की जगह पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम, एस की जगह पे क्या लिखेंगे, इट हैज नो डिविजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आई गो टू अ बीच वेन एवर इट इज अ सनी डे। इसको हम इसका कॉन्वर्स देखते हैं, तो उसके पहले इसको इफ देन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए व्हेनेवर समथिंग, ये व्हेनेवर समथिंग इज योर इफ कंडीशन। तो इफ इट इज अ सनी डे देन आई गो टू अ बीच, आप इफ देन में कन्वर्ट करके लिख लीजिए। फिर से आप, यही हिंट है, ऐसे ही आप उसको कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव में डाल दीजिए। सिमिलरली आर क्या है, इफ इट इज हॉट आउटसाइड देन वी यू फील थर्स्टी। ठीक है, तो ये आपका सजा के गिवन है, इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ यू फील थर्स्टी देन इट इज हॉट आउटसाइड। कंट्रापोजिटिव क्या होगा, इफ यू डू नॉट फील थर्स्टी देन इट इज नॉट हॉट आउटसाइड। ठीक है, गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म इफ पी देन क्यू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इट इज नेसेसरी टू हैव अ पासवर्ड टू लॉग ऑन टू द सर्वर। हमको पता है क्यू इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पी। ठीक है, तो आप इसको इफ देन में कैसे लिखेंगे, इफ यू लॉग ऑन टू द सर्वर देन यू हैव अ पासवर्ड। ठीक है, ये देन समथिंग आपका नेसेसरी कंडीशन है, वही इधर लिखा है, देखिए, इट इज नेसेसरी टू हैव अ पासवर्ड। Okay, moving to Roman 2. There is traffic jam whenever it rains. Whenever something is your if condition. तो इसका if then convert क्या होगा, if it rains then there is traffic jam. Okay. Next, Roman 3. You can access the website only if you pay subscription fee. तो P only if Q format में है, तो उसको if you can access the website then you pay a subscription fee. Simple answer. Okay. Now we will discuss question number 4. You have to rewrite each of the following statements in the form P if and only if Q. ठीक है, ऐसे फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट्स को। पहला क्या क्वेश्चन है, इफ यू वॉच टेलीविजन देन योर माइंड इज फ्री, एंड इफ योर माइंड इज फ्री देन यू वॉच टेलीविजन। तो आपका कंपोनेंट्स क्या है, यू वॉच टेलीविजन, योर माइंड इज फ्री। ठीक है, तो यू वॉच टेलीविजन इफ एंड ओनली इफ योर माइंड इज फ्री, आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, यू वॉच टेलीविजन ऑन इफ एंड ओनली इफ योर माइंड इज फ्री। नेक्स्ट, for you to get an A grade, it is necessary and sufficient that you do all the homework regularly. P if and only if Q का 3 इक्विवेलेंट फॉर्म था, हमने डिस्कस किया था, वही इधर मतलब उसी का एप्लीकेशन हो रहा है। तो ये आपका पहला कंपोनेंट है, यू गेट एन ए ग्रेड। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, यू डू ऑल द होमवर्क रेगुलरली। तो क्या हो जाएगा, यू get an A grade if and only if you do all the homework regularly. ठीक है, next is if an quadrilateral is equiangular then it is a rectangle, and if a quadrilateral is rectangle then it is equiangular. अगेन आप पहले कंपोनेंट्स देख लीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल इज इक्विएंगुलर, ये आपका एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, इट इज अ रेक्टेंगल। तो आप कैसे लिखेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल इज इक्विएंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रेक्टेंगल। सिंपल आंसर। नेक्स्ट,
आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, एक है पी स्टेटमेंट 25 इज मल्टीपल ऑफ 5, दूसरा है क्यू स्टेटमेंट 25 इज मल्टीपल ऑफ 8। आपको क्या करना है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है यूजिंग द कनेक्टिव्स एंड और, ठीक है। एंड इन बोथ केस वैलिडिटी चेक करना है कंपाउंड स्टेटमेंट का। क्या होगा, आप पहले P एंड Q लिखेंगे, फिर P और Q लिखेंगे। P एंड Q मतलब 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 25 इज मल्टीपल ऑफ 8। तो बार बार 25 इज मल्टीपल ना लिख के हम कैसे लिखते हैं, 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8। तो इसका वैलिडिटी क्या है, मैंने डायरेक्ट इधर फॉल्स लिख दिया है। आप कैसे लिखेंगे, देखिए आपका P क्या है इधर, ट्रू है, Q क्या है इधर, फॉल्स है। तो इधर कनेक्टिव क्या है, एंड। हमको पता है कि P और Q दोनों ही ट्रू होना पड़ेगा, तभी आपका P एंड Q ट्रू होगा। इधर Q फॉल्स है, देयरफॉर योर कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, P इज ट्रू बट Q इज फॉल्स, देयरफॉर P एंड Q इज फॉल्स, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8 इज फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट और कनेक्टिव यूज कीजिए, 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 और Q। ठीक है। तो आपको एक कंपोनेंट अगर ट्रू प्रूव कर मतलब दिखा सकते हैं, दूसरा फॉल्स होता है, तब भी आपका कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इधर आपका Q फॉल्स है, बट यू कैन चेक P is true, therefore your compound statement P or Q is true. Now we will discuss question number 6. Check the validity of the statements given below by the method against it. The first question is, the sum of an irrational number and a rational number is irrational number by contradiction method. How to do that? Suppose P is false. ठीक है। P is false का मतलब क्या है, the sum of an irrational number and a rational number is rational. ये हमने assume किया है। तो एक इरेशनल नंबर x लिया है, एक रैशनल नंबर y लिया है, दोनों का सम को हमने रैशनल एज्यूम किया है। तो जैसे रैशनल होता है हम उसको p बाई क्यू फॉर्मेट में डाल सकते हैं, वेर p एंड q आर को प्राइम्स, q इज नॉन जीरो। अगेन सिंस q is rational, therefore q can also be right like this, r and s are co-primes, s is non-zero. Therefore ये और ये इक्वेशन की यूज कीजिए, you will get x is equal to p by q minus r by s, and after simplifying you will get this something by something. समथिंग बाय समथिंग जैसे एक्सप्रेस करते हैं, मतलब x क्या बन जाता है, रैशनल बन जाता है। लेकिन x क्या था हमारा एजम्पशन में, इरेशनल था। तो ये क्या हो गया, एक कंट्रडिक्शन हो गया हमारा एजम्पशन का। देयरफॉर क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट p वो ट्रू होगा। Next question is, if n is a real number with n greater than 3, then n square is greater than 3 square by contradiction method. कैसे करना है, देखिए n रियल नंबर है with n greater than 3, तो आपने एज्यूम किया है n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। हम कंट्रडिक्शन में आएंगे, n ग्रेटर देन 3 मतलब n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9। तो हमने ये एज्यूम किया था, आ गया n स्क्वायर ग्रेटर देन 9, मतलब हमारा एजम्पशन गलत है। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज q इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन 5 different ways conveying the same meaning. Okay, if a triangle is equiangular then it is a obtuse angled triangle. कैसे करना है इसको, ऑलरेडी यही टाइप का एक क्वेश्चन 14.4 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं लिखा है। आई कैन गिव यू हिंट, इफ Q देन R में ये गिवन है, मतलब Q क्या है, ए ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर, R क्या है, इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है। तो इधर आप कौन से फॉर्मेट में डालेंगे, Q ओनली इफ R एक फॉर्मेट आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या है, Q इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर R, फिर क्या है, R इज नेसेसरी कंडीशन फॉर Q, Q इम्प्लाइज R। ऐसे करके आप 5 डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस करेंगे। यू कैन डू बाय योरसेल्फ दिस। ओके,
this is the end of the chapter mathematical reasoning. I hope you understood the chapter. Some questions of the exercises are not solved, and you have to solve them by yourselves, as the same type of questions are already discussed. Okay, thank you.